जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 535 एपिसोड ऑफ 535th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So what a great day today in markets. Nifty BankNifty behaved exactly as we had discussed yesterday. Many people were surprised from where this rally came, but not to our friends and followers who have been watching our live session on daily basis, especially to the group members also. And then we had taken some big trades in the crude oil market. तो वहाँ भी बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है. क्रूड ऑयल में शॉर्ट साइड में दो बड़े शॉर्ट्स लगे हैं, बड़े ट्रेड्स लगे हैं. So let us start today's session and we will discuss what's the roadmap ahead. कल किस तरीके से बाजार लग रहा है और क्या आज की रैली के बाद मार्केट्स रैली कंटिन्यू करेगा या मे बी देर इज सडन क्रैक, शॉर्ट टर्म सडन क्रैक in the offing. So let us start today's session. Good evening, नमस्कार दोस्तों. चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग इज scheduled on April 16th and 17th. And if you are interested to learn from us, you can WhatsApp on the number given in the description box and you can register for this training. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स दे आर बुलिश, द इक्विटी मार्केट्स दे आर चीयरिंग, यूरोपियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग पॉजिटिव, जर्मन डैक्स, फ्रेंच एंड यूके मार्केट्स on an average they are trading up by 1%. Asian markets, they were also up, and right now the emerging market ETF, the ACWI, all the equity index, they are firmly in the green, firmly in the bullish side. And S&P 500 इस समय 4,500 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है. नैसडैक भी इस समय जो है क्लोज टू 1.5% बुलिश है, अप है इस समय. So the bullishness in the equity market prevails even after yesterday's decline. Nifty and Bank Nifty have rallied. Let us have a look at the currency market first. So US dollar इस समय कुछ खास नहीं कर रहा है. US dollar is just trying to hold itself. And today afternoon session में US dollar भी थोड़ा bullish था. But then in the evening session, US dollar has given up all the gains. I feel still US dollar is going to remain bullish. You know, I think still US dollar has scope for one more round of up move to come, something like this. So US dollar में फिलहाल कोई मैं major trend as such नहीं देख रहा हूँ. I believe we are still on the bullish side. We don't expect any runaway bullishness to happen, neither we expect any crack. तो मेरे ख्याल से यूएस डॉलर जो है इस बड़े रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में. दिस इज द प्रीवियस रेजिस्टेंसेस व्हिच वी हैव ब्रोकन आउट सक्सेसफुली. दिस इज वेयर वी कुड नॉट सस्टेन, but this is where we sustained, came back to take support, and then we have resumed. So I believe we are still very much firm on the higher side, and even if some decline comes, it will again call for one more round of up trip. So यूएस डॉलर जो है ये बुलिश साइड में ही है. सबसे इंटरेस्टिंग आज दो चीज़ें हुई हैं करेंसी मार्केट में. सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई, जापानीज येन. एंड जापानीज येन टुडे स्टेज्ड अ वेरी ह्यूज अप मूव. एंड इफ़ यू रिमेंबर, हम जो है जेपीवाई आईएनआर जो है इसे हम लॉन्ग करके बैठे हैं. एंड टुडे this declined by a good 90%, which is very, very large move in the NSE Forex market. On an average, these currencies they trade by 50 paise here and there, up and down. But anything above 70 paise is considered to be a wild move, and this is certainly one of the big intraday move in the Japanese pair. और इसका रीज़न है USD JPY. यू कैन सी ये जो कैंडल है आज की काफ़ी एक सिग्निफिकेंट कैंडल है. एंड संडे के दिन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यूएसडी जेपीवाई शुड रॉकेट ऑन द हायर साइड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 120.5 टू होल्ड ऑन अ रेजिस्टेंस बेसिस. तो इंट्राडे हम 121 तक जा चुके हैं, एंड आई थिंक देयर आफ्टर some selling has come, and this is trying to stabilize near this expected level of 120.5.
सो यहाँ पे इस समय जो JPY INR पेयर है ये एक अच्छे लेवल पे है, 63 पॉइंट समथिंग है, 63.15 के आसपास का लेवल है। ये थोड़ा अगर JPY और अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, it can still go little up, but I think this is where it should peak out. So on the NSE futures front we can see a decline till 62.75. ठीक है, ये मैं फ्यूचर्स रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस मंथ विच इज मार्च। ठीक है, सो जो लोग इसे ट्रेड कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको इसमें डाउन साइड देखने मिल सकता है। राउंड अबाउट 63 is a very good level for the JPY INR pair. From 63 we should still start to move up at least till 65, and once we reach 65, then two things will happen. Number one, if the USD JPY still remains in the bullish side, on the bullish side, then I think the 63 will break in the next cycle, and it will start to shift slowly towards 62 and 61। ठीक है, तो दो फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। दो फैक्टर पे, सबसे पहला कि आपका USD JPY अगर ये 121 के ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो ये होगा कि आपका अगर USD INR ये अगर नीचे आता है, ये अगर USD INR आपका मैं समझता हूँ कि अगर 76 के नीचे ट्रेड करता है तो भी ये फिर पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो फ्यूचर के हिसाब से हमें ध्यान में रखनी होगी। फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल, एंड यहाँ पे सर्टनली आपको जो है कम से कम एक 65 रुपीज़ के आसपास आसपास के लिए 1 से 2 रुपए की टारगेट, 1.5 रुपए की टारगेट के लिए इसे प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्दी प्राइस फॉर द जापानीज येन अगेंस्ट द इंडियन रूपी। सो वन शॉर्ट वन बुलिश ट्रेड शुड बी टेकन, ये बहुत ही अच्छी डील होगी। दूसरा जो आज का सिग्निफिकेंट मूव हो रहा है बुलिश साइड में, वो हम देख रहे हैं ब्रिटिश पाउंड में। सो इफ यू रिमेंबर, वी आर वेरी बुलिश ऑन द ब्रिटिश पाउंड, and since 2 days we were consolidating in an inside bar, and today we have taken a very nice breakout. So British pound इसमें जो है हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस को डेवलप करके बैठे थे पिछले कुछ दिनों से, एंड आई थिंक टुडे वी हैव गॉट इन प्रॉफिट, एंड बाय टुमारो आई एक्सपेक्ट द हायर लेवल्स टू आल्सो कम। सो राउंड अबाउट 100 रुपीज से लेके 100.5 इसमें आपकी एवरेज एक्यूमुलेशन होनी चाहिए थी अगर आप इन दिनों में अगर आप हमें वॉच कर रहे थे, एंड यहाँ से सर्टनली 101.5 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। नाउ एक फ्रेश अपडेट इसमें मैं दे देता हूँ कि GBP INR वी विल स्टिल रिमेन वेरी बुलिश, एंड हमारा जो गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक है ये बुलिश साइड में है, और 100 रुपीज़ ये हमारा एक बेस है, मे बी 99.5 ये पैनिक लेवल के लिए एक है। सो दिस इज अवर एक्यूमुलेशन रेंज। ठीक है, 101.25, 101.25 दिस इज द पिवोटल लेवल बिलो विच ये रेंज हो जाएगा 1 से 1.5 रुपया। इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगे तो बहुत ही आराम से हमें 102.5 ईजिली, वेरी इजीली हमें ये मूव मिलेगा। ठीक है, मीडियम टर्म में गोइंग फॉरवर्ड मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू यही है कि दिस विल रिमेन एज अ बेस, and once we start to cross 102.5, okay, on a regular basis the stage will be setting up for a bigger move towards 105। ठीक है, ये 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स NSE मार्केट में करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये डे टू डे स्पॉट मार्केट या जो लोग ऑक्टा FX या ऐसी चिल्लर साइट वगैरह पे करते हैं जो इलीगल है, उनके लिए नहीं है। ये जो NSE फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए। ठीक है, सो ये दो अपडेट हैं। बाकी USD INR पे बेरिश व्यू मैंने संडे को दिया था कि थोड़ा पहले ऊपर जाएगा फिर इसे नीचे शॉर्ट करना है। तो आज की मूव देखने के हिसाब से मैं अभी इस समय USD INR पे बेरिश मूव को डिस्कार्ड करता हूँ। कोई बुलिशनेस भी नहीं है, कोई बेरिशनेस भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि फॉर टुमारो सेशन इसे जो है हमें थोड़ा स्किप कर देना चाहिए, एंड सेम गोज विद यूरो। सो राइट नाउ वी हैव GBP INR ऑन द बुलिश साइड, you have JPY INR which is very bearish right now, but I think one up trip, one
अपसाइड शुड कम। ठीक है, सो ये फॉरेक्स मार्केट में पूरी तरीके से क्लैरिटी मैं दे चुका हूँ। अब बात करते हैं कि कमोडिटीज मार्केट में क्या हालचाल है। सो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को लेंगे। वी विल टेक क्रूड ऑयल फर्स्ट। 80 to 60 पे ट्रेड कर रहा है, थ्रेटनिंग टू मेक अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, एंड व्हाट अ ग्रेट ट्रेड वी गॉट इन क्रूड ऑयल। येस्टरडे आई हैड गिवन अ शॉर्ट ट्रेड, बट आई वांट कि उसे कैरी नहीं करना है। अगर ये 8350 के नीचे क्लोज होगा तो इसे कैरी नहीं करना है। दैट वाज अ वेरी वेरी wise advice, and today you got a big gap up. Many people were trapped on the gap up because they could not execute yesterday's exit plan. But still today, after it started to break somewhere around 12 o'clock, that is the time जब इसमें जो है एक शॉर्ट ट्रेड हमने एडवाइस किया, और उसी समय जो है some positive news came from the Russia Ukraine crisis, and we got a very strong decline. So this was again a massive move. I hope कि जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में सब इस बात की एक वाउच कर सकते हैं दैट दिस वाज इंडीड अ वेरी गुड ट्रेड। अगर आपने क्रूड ऑयल में पैसे कमाए तो आप लिख के बताइए कि यस इंडीड दिस वाज अ गुड ट्रेड। देन सेकंड ट्रेड केम ओवर हियर ऑन द पुल बैक। दिस वाज अगेन वेरी फैंटास्टिक ट्रेड, अराउंड 84-80 के आसपास था, एंड इवन दिस डिक्लाइन मोर देन 200 और 300 पॉइंट्स। सो दिस वाज अगेन वेरी गुड ट्रेड। सो दो बड़े शॉट्स, एक ये और एक ये। सो इंडीड वेरी वेरी ब्रिलियंट ट्रेड्स कमिंग इन द क्रूड ऑयल। नाउ अब क्या अपडेट है इस मार्केट में, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नेचुरल गैस को एक बार देखता हूँ, क्योंकि नेचुरल गैस इस समय जो है ये अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को थ्रेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। सो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, तो अगर नेचुरल गैस आपने पहले से होल्ड किया है तो सर्टनली यहाँ पे जो है आप कुछ प्रॉफिट बुक करो, या तो अगर ट्रेल करना चाहते हो तो इस समय एक लेवल में देता हूं जो कि 383। दिस शुड बी योर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इफ यू आर एस्पायरिंग टू प्ले फॉर 400 410, देन ट्रेल 383 एज आई स्पीक। नाउ since we are breaking out, since we are potentially breaking out from about 390, अगर आपने पैसे कमाए हैं इसमें, अगर आपने यहाँ 360 से लेके 390 के रेंज में अगर आपने कुछ पैसे कमाए हैं, इफ यू हैव अर्न्ड द हाउस मनी, देन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इसी समय बाय कर सकते हो। 390 391 यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होगा 380। दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये एक एग्रेसिव एंट्री है, एक एग्रेसिव ट्रेड है। किसके लिए? फॉर दोज हु हैव अर्नड सम मनी, those who have collected the house money, and using that house money you can take a bet over here so that you don't lose anything from your pocket. And this is a very nice inverse head and shoulder pattern led breakout happening on the higher time frame charts. So ये काफी अच्छी है, volumes are also looking good, and plus we are breaking out post London closing. तो ये certainly अगर ये थोड़ा भी ऊपर क्लोजर देगा तो कल सुबह जो है यूरोपियन ट्रेडर शॉर्ट कवरिंग का शिकार होंगे, और ये और भी ऊपर जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक बार अगर ये 400 के आसपास की क्लोजिंग दे देता है तो नेचुरल गैस जो है दोस्तों आपको सरप्राइज कर देगा अपसाइड में। 450, 460, 480 ये सारे टारगेट जो है वैलिड है। On the higher time frame, you can see we are developing a squeeze pattern over here with a cup and handle texture. So today, if we can just break above like 395, 396, this will be a रॉकेट मूव ऑन दी अपसाइड। ठीक है, सो ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इसमें दो ट्रेड मैंने इस समय अभी सजेस्ट किए हैं, वन फॉर द फ्रेशर गाय हु हैव अर्न्ड मनी, एंड वन फॉर द गाय हु इज ऑलरेडी होल्डिंग द लॉन्ग ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लेते हैं गोल्ड। सो 51,350 पे इस समय गोल्ड जो है ट्रेड कर रहा है। 51,350 पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, एंड इफ यू हैव टेकन एनी काइंड ऑफ लॉन्ग ट्रेड इन गोल्ड, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। आई बिलीव गोल्ड कल जो है एक बहुत अच्छी कैंडल बनाने के बाद आज इसने देखिए बेरिश एनगल्फिंग बना दिया। सो आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्ग इन गोल्ड, दिस इज नॉट अ गुड साइन, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत डिक्लाइन कर सकता है। बट आई थिंक व्हाट गोल्ड इज ट्राइंग टू डू इज गोल्ड इज ट्राइंग टू फ्लश आउट बोथ द बुल्स एंड द बेयर्स। ठीक है, ये बुल्स और बेयर्स दोनों को फ्लश आउट करना चाहता है, बट कौन से बुल्स और बेयर्स को? जो थोड़े बेबी बुल्स या बेबी बेयर्स इन नेचर है। सो इट इज
It has flushed the bulls, it will flush out the bears, and probably then it will स्टार्ट दी नेक्स्ट लेग. सो इसीलिए इस समय इसमें कोई ट्रेड की सलाह नहीं होगी. अगर आप लॉन्ग साइड में है तो आपको निकल जाना चाहिए. सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक थोड़ा सा अपसाइड इसमें आना चाहिए था. कल हमने इसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा अपसाइड आया एंड देन इट हैज़ अगेन डिक्लाइन. सो सेम थिंग इज हैपनिंग इन सिल्वर. इस समय कोई भी इसमें ट्रेड नहीं है. कॉपर की बात करें तो कॉपर 812 के लेवल पे इस समय ट्रेड कर रहा है एंड कॉपर पे भी इस समय मुझे कोई खास ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है. बट येस सर्टनली इन नेक्स्ट 3 days कॉपर में एक बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा. सो दैट्स ऑल ऑन द एमसीएक्स फ्रंट. आई थिंक एक रेगुलर ट्रेडिंग में क्रूड और नेचुरल गैस ये दोनों फिट हो रहे हैं फॉर डे टू डे ट्रेडिंग. गोल्ड सिल्वर में इस समय कोई ट्रेड नहीं है. 3-4 दिन में एक बड़ा ट्रेड उसमें आएगा. सिमिलरली कॉपर और मेटल्स में भी वी विल हैव टू रिमेन पेशेंस एंड वी विल गेट अ ट्रेड. ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन. सो बिटकॉइन, इफ यू रिमेंबर, वी आर बुलिश. And in every decline, I have told you that we should buy the Bitcoin, and we are heading towards 44,000, 45,000. And today Bitcoin is up by almost 3.5%, 42,500 पे ट्रेड कर रहा है. इसने एक फ्रेश एक ब्रेकआउट दिया है. सो बहुत ही लाजवाब मूव बिटकॉइन दे रहा है. एंड आई बिलीव अभी और ये 2 से 3 हज़ार पॉइंट्स की अपसाइड इसमें बाकी है. सो यू शुड डेफिनेटली, आई थिंक आपको इसमें बेनिफिट हुआ होगा. अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी 2 बार मैंने सजेस्ट किया था बाय करने के लिए. एंड व्हाट अ नाइस ब्रेकआउट वी आर सीइंग इन इथेरियम. इथेरियम कम से कम 3,300 जो है जाने वाला है. मैं इथेरियम में अगर ये 3,500 भी चल जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज इथेरियम डेफिनेटली लुक्स बेटर देन बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट 10% मूव. ठीक है, सो इथेरियम का चार्ट जो है ज़्यादा बेहतर है. सो इथेरियम अगर 3,500 भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. आई बिलीव यू शुड स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट समवेयर नियर 3,200, जो कि हमारा पहला टारगेट था. ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी बुलिश है हम. नो वरीज, नथिंग एट ऑल. ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट आवर मार्केट्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, कि इनमें आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी मूव आ गई एंड एवरीबडी गॉट सरप्राइज्ड. बट जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो सरप्राइज नहीं हुए, उन्हें काफ़ी मज़ा आया. क्योंकि कल आपको याद होगा दोस्तों, तो यही चीज़ हमने डिस्कस किया था दैट टुडे वॉच फॉर 17,000 लेवल्स. सो आज के दिन के लिए यही हमारा व्यू था कि नीचे से जो है मार्केट नीचे तो जाना चाहिए डेफिनेटली, बट यू शुड लुक टू बाय नियर द 17,050, 17,000 सॉर्ट ऑफ अ लेवल. सिमिलरली बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ मैंने एडवाइस की थी कि नीचे जो है पहले वेट करना. इसे 35,600, 700, लेट इट ब्रेक दिस लेवल 35,600, 700 एक्सेट्रा. इसे ब्रेक करने देना और फिर ये ऊपर आए, वी वैप क्रॉस करे तो आप इसे बाय कर सकते हो. सो वेरी वेरी ह्यूज मूव इन दी बैंक निफ्टी एंड दी निफ्टी. सो आई विश एंड आई होप कि सभी ने इसका जो है फ़ायदा उठाया होगा, इंट्राडे ट्रेडर्स ने. और ग्रुप मेंबर्स में तो आई थिंक most of the people they took this trade and many made 200 points, किसी ने निफ्टी में 100 पॉइंट, किसी ने 250 पॉइंट. various at various degrees they have benefited. Okay, now what's the update कि अब क्या ये मूव कल भी कंटिन्यू होगा या कल कुछ गड़बड़ हो सकता है इंट्राडे. तो इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट द डेली चार्ट. ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है. एज वी कैन सी, सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है पिछले 3 सेशन में. ठीक है, सो what happened is yesterday when the nifty declined in this particular fashion, कि ये एक bearish engulfing candle बन गया था इस तरीके से. So everybody started talking about these instances where you can see that after a brief rally it pauses and then you get a bearish engulfing and then there is a fall. तो ये चीज़ मैंने जो है सीधे कहा कि ये चीज़ आप जो देख रहे हो ना, ये बेरिश नहीं, ये बुलिश है. और बुलिश किस लिए है? क्योंकि कोई पैटर्न अगर एक रिपीटेड बेसिस पे हो जाता है चार्ट पे, तो ये फिर इट डजंट वर्क, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिगर कॉन्टेक्स्ट. नाउ द बिगर कॉन्टेक्स्ट इज सर्टनली बुलिश, जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस में भी एक्सप्लेन किया है. बुलिश का मतलब है कि देयर कैन बी वन बिगर करेक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव 2.
somewhere to test this swing over here. But overall it's a bullish phase towards 18,000 लेवल. ठीक है, इस तरीके से. अब क्या ये डिप यहाँ से आएगा, क्या ये डिप यहाँ से आएगा, ये मुझे भी नहीं पता. ठीक है, बट एक चीज सर्टन है कि जो वीकली मॉब लेवल मैंने आपको सजेस्ट किया था 17,350, इसके नीचे मार्केट मंदी का था 17,000 तक के लिए, या इन एक्सट्रीम के 16,950 के लिए. तो यहाँ से एक ट्रिप नीचे हुआ, यहाँ से एक ट्रिप ऊपर हुआ. सोमवार मंगलवार, मंडे ट्यूसडे वी गॉट बोथ द ट्रिप्स. ठीक है, अब बात करते हैं कि कल से क्या करना है. सो इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन, अगर हम ये प्राइस एक्शन को देखें तो इन तीनों चीज में what is the common thing? The common thing is 17,350, which happens to be, the high of this big candle. If you see, even on this day, you had got a very huge move. Yesterday, I mean, the preceding day, there was again, if you see, a very bearish decline. This was again very huge decline from almost 17,400 level to 16,800, 600 points की decline हुई थी बड़ी gap down के साथ. And next day again there was a reversal. And what happened is it could not sustain above this zone and then you got a decline. ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों मूव्स एकदम ऑपोजिट हैं, वाइस वर्सा हो चुके हैं, तो इट इज वेरी क्रूशल दैट वी सस्टेन ऑन द हायर साइड. ओके, सो जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस डजंट मीन यू ड्रॉ सम फैंसी लाइंस, यू रीड सम बुलशिट कैंडलस्टिक बाय देयर नेम एंड यू कैन इन्फर. नो, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है यू नीड टू decode the chart through the lens of psychology, where what has happened, and then the technical parameters, as in the support, resistance, the bigger picture, multiple time frame analysis and all those things. Now अगर हम प्योर डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो 17,350 इज द लाइन इन द सैंड. इसके ऊपर जो है बुल्स शुड बी इन कंट्रोल और उसके नीचे बेयर्स विल रिमेन इन कंट्रोल. ये एक पेंडिंग गैप था जो कि लगभग फिल हो चुका है. नाउ इफ यू आस्क फ्रॉम अ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, देन what has happened? See, is then bears they ruled today, bulls have ruled. Net nobody is clear. ठीक है, नेट स्कोर जो है 0 है, यानी +1 -1 0. सो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है. बट व्हाट हैज हैपेंड कि जो कल बेरिश थे, ठीक है, who were expecting a larger drop, today उनका sentiments out हो चुका है, right? Those who were bullish yesterday but could not cut the trade because of man is a slave of his habit, तो ये बंदा जो है अब ग्रांटेड ले रहा है. ठीक है, ये बंदा जो है ये अब ग्रांटेड ले रहा है और इनकी संख्या जो है मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा है बाजार में इस समय. दैट इज व्हाई आई सेड दैट विद टुडेज अप मूव, अगर ये ऊपर फॉलो थ्रू हो गया तो ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी एंड देन मार्केट शुड मूव हायर. और 17,350 वीकली मॉब लेवल जो है हमारा, उसके ऊपर के हमारे टारगेट्स बड़े सिंपल है, 17,800 एंड 700, 900, ऑल दोज लेवल्स अप विल कम very very easily. On the left hand side there is no credible resistance. These are all small resistances and market should directly head towards the bigger resistance of 17,800, 18,000 level. But अगर ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं, ठीक है, 50-75 पॉइंट्स हम इंट्राडे ऊपर जाते हैं and then we start to crack, what will happen is bulls have utilized all the ammunition today and as a result of which, जैसे यूक्रेन ने बोल बचन में अपने सारे एम्यूनिशन जो है यूटिलाइज कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने आके, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि एम्यूनिशन तो यूटिलाइज हो गया. अब अगर रिजल्ट नहीं आया तो कल आपके पास कोई भी अरसला नहीं है, तो फिर बेयर्स जो हैं ये मर्सनरीज को बुला के आपको खत्म कर देंगे. सो व्हाट विल हैपन इज मार्केट कैन क्रैक एंड दिस विल बी दैट सेकेंड करेक्शन, right? That will shatter the confidence of all the bulls and then the third should start. ठीक है, सो अब सिंपल शब्दों में बात करते हैं कि कल का जो मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों वो होगा ये ट्रिपल रेजिस्टेंस विच इज समवेयर, आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली 17,000, आई वुड से 17,350, 370 समवेयर ओवर देयर. ठीक है, तो ये हमारा मॉब लेवल है, इसके ऊपर वी आर सर्टनली बुलिश. और पहला जो एक टारगेट मैं लेके चलना चाहूँगा कल के लिए वो होगा 17,000
17,550 and second target 17,777. Below this, as I've explained, we will be bearish. पहले हम इन दोनों कैंडल का कॉमन ग्राउंड को टारगेट रखेंगे, which is 17,150. Below that 17,000 राउंड नंबर. एंड अगर 17,000 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर मार्केट कैन पंक्चर वेरी बैडली. और फिर टारगेट्स तो काफी नीचे हैं, मैं लिखना नहीं चाहता, बट मे बी 16,800. What is the going bias for tomorrow? Neutral. ठीक है, there is no bias. एब्सोल्युटली, जिस साइड बाजार घूमेगा हम उस साइड घूमेंगे. आज हमने बहुत बढ़िया इसमें लॉन्ग ट्रेड में कमाई की है, बैंक निफ्टी में कमाई की है. सो कोई प्रेशर नहीं है, आराम से रिलैक्स एंड सेफ एंड साउंड जो है काम करना है. ठीक है, सो ये हो गया निफ्टी की प्लानिंग, निफ्टी की अपडेट फ्रॉम द एंगल ऑफ साइकोलॉजी, इन्वेंट्री एंड टेक्निकल एनालिसिस. अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन है. तो बैंक निफ्टी वाज अ रॉकर ऑफ द डे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज देखिए कि ह्यूज 1000 पॉइंट की जो मूव आई है, बहुत ही शानदार. एंड लुक एट द प्राइस एक्शन. सी, ये चीज को सीखने वाली चीज है आज जो हुई है बाजार में. लुक एट दिस वेरी लार्ज गैप. सबसे पहली बात, वेरी लार्ज गैप. ठीक है, वेरी ऑब्वियस सपोर्ट, पहला कैंडल, यू गॉट अ बाउंस. अब यहां पे सोचो, इस समय जो बंदा लॉन्ग करना चाहता है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि यार ये एक अच्छा लेवल तो है और मैंने मिस कर दिया, बैंक निफ्टी अब ऊपर भी आ चुका है. अब अगर मैं यहाँ लॉन्ग करता हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसके नीचे काफी बड़ा गैप है. सो माई स्टॉप लॉस इज एक्सपोज्ड एंड इट कैन बी हंटेड. तो ये बंदा लॉन्ग नहीं करेगा. कुछ लोग होंगे जो लॉन्ग करेंगे बिंदास. ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन कि दोनों ही यहाँ पे आउट कर देंगे या दोनों यहाँ पे निकल जाएंगे. एंड दैट इज व्हाई द सेकेंडरी मूव ऑलवेज हैपेंस टू टेस्ट द कन्विक्शन. एंड जब ये सेकेंडरी फ्लश होने के बाद ये प्राइस पिवट ब्रेक होता है, दैट्स इट, आपको यहीं पे लॉन्ग करना है. एंड इफ यू लुक, दिस इज वेयर द बिगेस्ट कैंडल कम्स. यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे आई एम श्योर वॉल्यूम भी बहुत स्पाइक हुआ होगा. एंड दिस इज वेयर यू नो द लोअर टाइम फ्रेम टेक्निकल्स दे ऑल्सो अलाइन. सो इफ यू सी, ये एक चैनलाइज मूव था, 1 2 3 4 5, एंड देन यहाँ से एक ब्रेकआउट. एंड दिस इज वेयर द हॉरिजॉन्टल सप्लाई वाज आल्सो देयर. सो इस तरीके से प्राइस एक्शन को जो है डिकोड करना है, समझना है, ताकि आप इसका एडवांटेज ले सको. दूसरी चीज, पूरा कॉन्टेक्स्ट बुलिश था, बिगर कॉन्टेक्स्ट इज बुलिश. ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा जो गैप दिख रहा है, लुक एट द साइज ऑफ द गैप. अगर ये छोटा गैप होता तो ये जो मूव है ना, ये पूरा नीचे तक आता, 100% गारंटी दे रहा हूँ. बट बिकॉज दिस वॉज अ बिगर गैप, if it has to move up, it will never fill the gap or it will never sustain below morning lows. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ. ठीक है, कि जब गैप बहुत बड़ा हो और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, सुबह एक बॉटम बन चुका है, दूसरा वाला बॉटम जो है ना, मोस्टली ये फ्लश करेगा. तो अगर ये फ्लश हुआ तो निकल जाओ. जिन्होंने भी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग जो है अटेंड की है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है अब अप्लाइड मोड में आपको दिखाई दे रही होंगी मार्केट में काम करते हुए. सो बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है? सो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखें तो कल जो है, आपको याद होगा, 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 35,700 650 पे, जो कि आज काम कर चुका है. अब कल के लिए इसमें भी वही चीज है, दैट टुडे वी हैव यूटिलाइज्ड ऑल द एम्युनिशन एंड वी हैव एन ओवरहेड इन्वेंटरी सिटिंग एट 36,640. क्या लेवल है? 36,640. यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस वाला रेजिस्टेंस है. पहला रेजिस्टेंस है पिचफॉक का, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका 65 डे मूविंग एवरेज का, तीसरा आपका सप्लाई डिमांड का एक रेजिस्टेंस है, और चौथा रेजिस्टेंस है आपका फिबोनाची का. सो देयर आर 4 टेक्निकल टूल्स कमिंग टुगेदर टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस, जो कि आसान नहीं होगा नेगोशिएट करना. प्लस यू हैव दिस लॉट ऑफ हेडविंड्स. तो मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी को कल कैसे हम ट्रीट करेंगे. देखिए, पहले तो बैंक निफ्टी मोस्टली ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज इट वुड लाइक टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट वी आर ब्रेकिंग फ्रॉम दिस फ्लैग. ठीक है, एंड देन if it doesn't sustain on the higher side, then again it will drop, and possibly it can drop towards 35,000 in the next 1 or 2 or 3 session. तो प्लान बहुत ही सिंपल है. प्लान क्या है? देखिए, प्लान इस तरीके से हम इसे लेके चलते हैं कि हम एक मॉब लेवल के तौर पे हम इसे दो एंगल से प्ले कर सकते हैं. पहला कि ये जो आपका आज का ओपनिंग प्राइस और कल का जो क्लोजिंग, यानी कल का सी
क्लोजिंग, आज का ओपनिंग, सी इज इक्वल टू ओ, राइट, ये जो लेवल है ये हम इसे मॉब लेवल बना देते हैं। यानी जब तक ये सी इज इक्वल टू ओ, सी इज इक्वल टू ओ का लेवल है 35,950, जो कि एक राउंड नंबर भी आता है अराउंड 36, तो हम एक मॉब लेवल ऐसे कंसिडर करते हैं कि 35,950, यानी राउंड नंबर 36, ठीक है। अब या तो जब तक ये सेफ है तो ऊपर की एक मूव इंटैक्ट है 36,680, ठीक है। तो अगर बाजार गैप डाउन खुलता है कल, इसके नज़दीक आता है तो एक लॉन्ग ट्रेड करो, ज़्यादा नहीं, 200 पॉइंट की एसएल, 150 पॉइंट की एसएल, ठीक है, फॉर वन। बाजार पहले ऊपर खुलता है, फर्स्ट वी गो हियर एंड कंप्लीट द अपसाइड टारगेट, देन लुक फॉर साइन ऑफ वीकनेस, SOW, लुक फॉर साइन ऑफ वीकनेस, वी वैप के नीचे ट्रेड करना, ऊपर सस्टेन नहीं करना, लुक फॉर 5 मिनट चार्ट पे एक वीक डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर, अगर ऐसा कुछ दिखाई दिए तो शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो समवेयर नियर, यू कैन कीप से 36,900 और 36,950, 37, एक राउंड नंबर स्टॉप लॉस के साथ अगेन फॉर दिस मूव। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर देन वी आर आई थिंक हेडेड टुवर्ड्स 35 के। तो कल के दिन लेवल, दो ही लेवल हैं, 35,950 यानी 36, और 36,680 यानी 36,700, इसी दोनों के बीच में पूरा गेम है। आइदर साइड के दोनों ट्रेड मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड अगर मॉब लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 35,000 जाएंगे, और अगर हम 36,700 को ब्रेक करते हैं, अगर इसके ऊपर जाते तो फिर इसे गलती से भी शॉर्ट मत करना या कैरी मत करना, बिकॉज वी हैव अ बिग गैप टिल हियर, एंड 37,500 इज सर्टनली कमिंग, ठीक है। सो काफ़ी डिटेल में इसे मैंने जो है आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप इससे आपको जो है बेनिफिट होगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग बट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू रीड द चार्ट्स, प्राइस एक्शन को किस तरीके से जो है रीड करना है। मैनी पीपल दे मैसेज कि ओपन इंटरेस्ट ये वो, तो मैं सिंपल कहता हूँ बॉस वो सब चीज़ें क्यों देखते हो, ठीक है। अगर वो सब आप देखोगे तो यू आर ओनली हैंडीकैपिंग योर सेल्फ, आई डोंट नो इफ देर इज सच अ वर्ड, बट यू आर लिमिटिंग योर इमेजिनेशन, you are limiting your skill, and your skill is the biggest edge in market, not any data point, ठीक है। वो कोर्स वगैरह बेचने के लिए काम आते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में अगर आपको वाजिब लेवल का एक टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करो। ओके, नाउ सिंस वी हैव कवर्ड ऑल दी एसेट क्लासेस, हमने करेंसी किया, कमोडिटीज, निफ्टी बैंक निफ्टी, अब हम आखिरी सेक्शन ऑफ द डे में आते हैं जहाँ पे हम कुछ स्टॉक क्वेरीज जो है ले सकते हैं। सो इफ देर आर एनी स्टॉक क्वेरीज यू कैन सर्टनली मैसेज। एंड कुणाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट। बैंक निफ्टी में आपने 900 850 पॉइंट्स आपने कमाए, 100% योर एनालिसिस, परफेक्ट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑल राइट, सो क्या स्टॉक क्वेरीज हैं इस समय, और आज मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनली इट हैज ब्रोकन द 25-20 लेवल, वेरी वेरी strong move that came from Reliance, 2.5%, Kotak Bank, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। लुक एट SBI, 480 से 495, बहुत ही शानदार। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिनके मूव्स बड़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। आई मीन अगर आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सेट ऑफ स्टॉक्स को फॉलो करो, you will develop that screen reading skill that will do wonders for you। चलिए, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो रिपीट क्वेरी मैं नहीं लूंगा। HDFC, ओके, सो HDFC इस समय जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी, बेरिश काउंटर है, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल पुल बैक है, अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है 2500 2550, दैट्स इट। एंड उसके ऊपर मैं स्टॉक को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। So max to max it can go over there 2550, that's it। On the lower side you need to protect 2280, those are 280, इसे आपको प्रोटेक्ट करना है। और ऊपर में 2550, that is the ceiling as of now। नेक्स्ट क्वेरी है बिरला सॉफ्ट, ओके, सो बिरला सॉफ्ट पे काफ़ी आज मैसेजेस भी आए थे, काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है, एंड मैनी पीपल आर ऑन द लॉन्ग साइड, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना।
Now if you have taken long today, then by default आपका stop loss. See, what is the problem with this sort of chart structure? The problem is, number one, you have no place to hide your stop loss. अभी hiding your stop loss का concept क्या है, ये मैं वैसे पहले भी explain कर चुका हूँ. See, क्या होता है कि अगर आपको जोश दिखाना है और अगर आप सामने आके दिखाओगे तो मारे जाओगे, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड गोरिल्ला वॉरफेयर. अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप की इतनी जब सिंपल जब स्ट्रक्चर है, तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है. बट ये चीज़ तो सबको पता है. सो व्हाट हैपेंस इज इट गोज अप, comes down, takes out all the weak hands, and this is the point where the investor, or not the investor, this is the point where the professional trader is waiting. ठीक है. तो इस स्टॉक में अगर कुछ ऐसा हो तो सरप्राइज मत होना. फॉर द टाइमिंग स्टॉक बुलिश है. दो चीज़ें बताता हूँ. अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो यू कैन कीप, ठीक है, 444 3 times 4, or if you want to keep a deeper stop loss then keep 408. सेकेंड सिचुएशन, अगर इसे सेकेंड राउंड में बाय करना चाहते हो तो 408 410 पे बाय करना और 380 का स्टॉप लॉस रखना. ये ट्रेड बढ़िया ट्रेड कहलाएगा, ठीक है. और अभी वाला जो ट्रेड है ये छोटा ट्रेड है, जूनियर ट्रेड कहलाएगा. ओके, बायोकॉन दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए. बायोकॉन इस समय फर्स्ट ब्रेकआउट था, देन अगेन इट हैज स्लम. सो राइट नाउ वैसे तो काउंटर अभी इस समय थोड़ा बेरिश है. अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट एंड कीप इट, देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है. एंड टुडे आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस कमिंग इन, बट शॉर्ट टर्म प्ले नहीं करना चाहिए. बायोकॉन को आप बाय एंड होल्ड टाइप ही करो. थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस 300 का एक लेके चलो. अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म वाइज है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस 325 होना चाहिए एंड यू कैन एक्सपेक्ट 350 347 350. ये हो गया एक. देन आई कैन सी आईटीसी पे सेम व्यू है भैया. 300 का टारगेट है, 280 और 320 दो टारगेट है मेरे. 210 पे बाइंग कराई है, 180 का स्टॉप लॉस है. एचडीएफसी बैंक आईटीसी पे बहुत पहले ही अपना व्यू क्लियर था. एचडीएफसी बैंक बहुत ही सॉलिड चल रहा है एंड 1500 के आसपास का लेवल पे ट्रेड कर रहा है. आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज बुलिश एंड एटलीस्ट इफ इट कैन ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, ये आखिरी रेजिस्टेंस है. यू कैन सी ये पेंडिंग गैप था, आज फिल हो चुका है. ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ब्रेक कर दे राउंड अबाउट आई वुड से 1527. आज रिलायंस ने किया है, तो 4 दिनों में ये भी कर देगा तो फिर मामला जो है सेट हो जाएगा. एंड ऑन दी लोअर साइड मैं समझता हूँ कि आज का जो बॉटम था अराउंड अबाउट या ब्रॉडली स्पीकिंग हम अगर 1420 को कंसिडर करें तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन लेवल होगा, ठीक है. सो एक 1420 इसको ध्यान देंगे, ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए एंड इमीडिएटली वी शुड सी 1525 और 1530, ठीक है. तो यहाँ एक बार अगर हम ब्रेकआउट करने लगे तो फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा. इन दैट केस एनी डिप दैट कम्स नियर 1420 विल ऑटोमेटिकली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से, ठीक है. सो बुलिश है एचडीएफसी, पहले से भी मैं कह रहा हूँ कि ये बुलिश है. एचडीएफसी में एक मैं बहुत पहले से ट्रेड करवा चुका हूँ और वो स्ट्रिक्टली इन्वेस्टमेंट के एंगल से था कि बाय बिटवीन दिस 1450 1500 स्लैब एंड होल्ड टिल दिस 1300 इज प्रोटेक्टेड फॉर अ टारगेट ऑफ 1850. ये विंडो अभी भी ओपन है मेरा, ठीक है. सो यहाँ पे इट केम वेरी क्लोज टू दैट 1300 बट ये डिफेंड हो चुका था, बच गया था एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ वेरी नाइस मूव. अगर आपको याद होगा तो पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था that because we have a very strong head and shoulder pattern over here, most likely we should see a breakdown first and then a reclamation of that level, and because of this the stage will be set for 1840 as a upside target जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस आपको फ्यूचर में मिलेगा. सो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही लाजवाब एनालिसिस होती हैं. ओके, पेटीएम के बारे में पूछा जा रहा है तो भैया पेटीएम में पहले ही कर चुका हूँ कि पेटीएम अगर बाय करोगे तो फंस जाओगे. पेटीएम, जोमेटो, नायका, वायका, ऑल द बुलशिट.
नेक्स्ट जो क्वेरी है दैट इज कमिंग ऑन हिंडाल्को। हिंडाल्को अभी परसों मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1550 से लेके 1500 कह रहा हूँ, सॉरी, योर 550 टू 600 इस स्लैब में प्ले करना चाहिए। कल भी मैंने ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था, इट इज हेडिंग 600, निकल जाओ। ठीक है, तो हिंडाल्को में हाँ बेस्ट ट्रेड कहाँ था? हिंडाल्को में बेस्ट ट्रेड यहाँ से शुरू हुआ था, जब से हमने इसे एडवाइस किया था बाय करने के लिए। दैट टाइम ऑल द मेटल्स वर बेरिश एक्सेप्ट हिंडाल्को एंड वेदांता, एंड लुक एट दीज टू स्टॉक्स, दे हैव रॉकेटेड। एंड सबसे पहले हमारा टारगेट था इसको टेक आउट करना, देन 590 ये भी हो गया है। एंड राइट नाउ व्हाट शुड हैपन इज 550 से 600 के बीच में ये स्टॉक जो है, ये जो डबल टॉप था, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा एंड इट विल एस्पायर फॉर 640। बट ये जो मूव है इसमें अगर आपको बाइंग करनी है तो आप नीचे के स्तर पे करना, यहाँ पे, यहाँ मत करना। यहाँ करोगे तो क्या होगा, इस पूरे रेंज के बीच में आप फंस जाओगे एंड फिर मज़ा नहीं आएगा। आप यहाँ पे करोगे तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, प्लस अगर 550 से 650 मिल गया तो बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। ठीक है, सो आई होप इस चीज़ को समझिए। एंड यही अपडेट होगा हिंडाल्को पे। Adani Ports is a very very bullish counter, and we had already recommended this. Many people have bought and they have benefited, and it's just a matter of time when it will break this resistance. Watch yesterday's video. I've explained very beautifully what is likely to happen, and again we can see two rounds of flush over here, and very nice. Just matter of time. It should shoot 800 level very easily. 800 like done deal है, very 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 likely. And once it crosses this 800 kind of a level, एक बार हम इस पे revaluation करेंगे, because I believe once we take out that 800, I think certainly we are heading towards much much higher levels. So if I extrapolate the demand line on the last resistance or the supply, we are heading straight away 900। ठीक है, जो कि विच हैपन्स टू बी द टॉप ऑल्सो, सॉर्ट ऑफ टॉप राउंड अबाउट अ ईयर बैक। सो बहुत ही शानदार। ठीक है, ऑल राइट, काफ़ी क्वेरीज हैं, लेट मी रीड दी मैसेजेस स्लोली। स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस हैं इसमें। IRCTC देखो वही व्यू है जो बहुत पहले मैंने शेयर किया था, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ कि ये स्टॉक जब तक अपने 233 EMA पे नहीं आएगा, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और पिछले 2 महीनों से तो ये सही साबित हो रहा है। सो आई एम वेटिंग फॉर लोअर लेवल्स टू कम। ठीक है, अगर आप पहले बाय करके बैठे हो तो या तो फिर उसे एग्जिट करो, या तो कुछ डू सम ट्रीटमेंट, या फिर जस्ट सेट वेट करो अभी। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है बलरामपुर चीनी पे। तो देखो चीनी कम है, बलरामपुर चीनी शुगर वगैरह जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेट कर चुके हैं। एज फार एज बलरामपुर इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि इसमें एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि आप ट्रेल करो, बिकॉज दीज कैन स्टिल मूव टुवर्ड्स 560 590। तो ट्रेल करना पड़ेगा, और ट्रेलिंग जो है सेक्रीफाइस के बिना नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो है 420 रुपये पे से ट्रेल करना होगा, या तो फिर प्रॉफिट बुक कीजिए थोड़ा सा, 50% प्रॉफिट बुक, कीप 50% होल्डिंग, या फिर ट्रेल करो 420 के लेवल पे एंड लेट दी हायर लेवल्स ऑफ 600 620 कम। दैट इज द ओनली वे यू कैन मैनेज दिस स्टॉक। इंडसइंड बैंक पे क्वेरी है, स्टूडेंट्स की क्वेरी है, इंडसइंड बैंक एंड AU बैंक। सी इंडसइंड बैंक जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि परमा बेयर काउंटर है, एंड यूरोपियन फैमिली है, और यूरोप में क्या हो रहा है आपको पता भी है। किसी भी दिन किसी का भी सारा एसेट्स फ्रीज हो सकता है, तो इसलिए इससे सावधान रहिए। अपसाइड में आई डोंट थिंक इट विल क्रॉस 1000 रुपीज, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें अगला जो शॉर्ट होगा ये मैं बताऊंगा आपको। अगला जो शॉर्ट होगा, चाहे वो 1 महीने में हो या 4 महीने में हो, बहुत ही गजब का शॉर्ट ट्रेड होगा। ब्रिटानिया की बात करते हैं तो अमृत का क्वेरी है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लंबा चौड़ा क्वेरी दिख रहा है मुझे, क्या है क्वेरी, लेट मी रीड। ब्रिटानिया मेंशन सेल ऑफ, ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ब्रिटानिया में ओके ओके यही बात थी। ठीक है, सो ब्रिटानिया में यही चीज़ डिस्कस हुआ था। दिस वाज द फ्लोर
which got broken. This was a discount level, so यहाँ से एक bounce आना था क्योंकि कोई ना कोई investor lap up करे. So basically, support when breaks on retest act as a resistance. That's it, और कुछ नहीं है. ठीक है. So बहुत ही obvious move है, very very obvious. ये हो चुका है चंबल फर्टिलाइजर. ओके. देखो फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब बहुत बुलिश हैं. ठीक है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा. दैट्स इट. इस स्टॉक को 350 347 ट्रेल करते जाओ. सिंपल चीज एक बताता हूँ. ओपन योर मोबाइल ऐप, सिर्फ 233 ईएमए को लगा दो उसमें. जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं जाता है, जस्ट कीप होल्डिंग इट. ठीक है. हो सकता है स्टॉक हो सकता है स्टॉक 500 जाके ब्रेक डाउन कर दे. ठीक है, तब तक आपकी एग्जिट आपको मिलेगी 400 रुपये पे. हो सकता है चलते जाए और ना रुके. ठीक है. सो द चॉइस इज योर्स. एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 500 रुपये पे, तो यहाँ पे आप इफ़ यू वांट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हो. बाकी को ट्रेल कर दो 233 ईएमए पे, या फिर सबको ट्रेल करते जाओ एंड राइड द ट्रेंड. चॉइस आपकी है. वेदांता, वेरी बुलिश काउंटर. ठीक है, आई थिंक सबको याद होना चाहिए. बहुत ही सॉलिड, बहुत ही माइंड ब्लोइंग काउंटर है. अमेजिंग, नो वर्ड्स. एंड लकीली बहुत पहले से हमने स्पॉट कर लिया था थैंक्स टू द मंथली चार्ट. वेरी वेरी ग्रेट. सो आई थिंक अभी तो बहुत बाकी है. अभी तो 500 का लेवल भी नहीं आया है. इट इज़ हार्डली एट 400. सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो. आई कैन सी 1 2 3 टॉप हियर. सो सम प्रॉफिट बुकिंग. ओवरऑल कोई भी करेक्शन आता है, जैसे अगर हमें ये 375 मिले, 360 मिले, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए. एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन वेदांता. एटलीस्ट 500 600, दीज आर द लेवल्स दैट आर गोइंग टू कम. कुछ क्वेरीज हैं अपोलो टायर्स पे. अपोलो टायर्स इस समय जो है 190. अगेन देखो अपोलो टायर में भी यही प्रॉब्लम है. प्रमोटर जो है लंदन में रहते हैं, बंगलो बनाते हैं हंगरी में. ठीक है. सो यूरोपियन कनेक्शन जिनका है ना, सबको तकलीफ होगी. सो फॉर द टाइमिंग अभी एज ऑफ नाउ ठीक है, इट्स ओके. ये जाएगा 200 208 निकल जाना. ठीक है. समवेयर एनी मूव नियर 200 25 210 जस्ट एग्जिट. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेरी है हेवल्स पे है. हेवल्स ऑल्सो आई एक्सप्लेन यस्टरडे. हेवल्स इंडिया आई हैव एक्सप्लेन यस्टरडे एंड द व्यू वाज वेरी सिंपल कि अगर नीचे आता है तो बाय करिए and keep this as a stop loss. So I think that is activated. Maintain a stop loss of like 1030 1025 somewhere here. Okay. And expect कर सकते हैं 1250 1250. You can expect not more than that. 1250 1200, these are the reasonable targets for this stock. ठीक है, for the short term. In future, like after 2 to 3 months, we will get one big trade in this stock. ओके. टाटा केमिकल बाई किया है 938 पे. टाटा केमिकल. ओके, लेट मी सी टाटा केमिकल. दोस्तों वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1 आवर ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग. आई विल टेक कपल ऑफ क्वेरीज. तो टाटा केमिकल आपने अगर बाई किया है तो ठीक है, 938 पे बाई किया है, बहुत अच्छे. ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल रेट पे आपने बाई किया है. तो आपको ये करना होगा कि आपको 925 का स्टॉप लॉस लगा देना है, 924 का लगा देना. दैट्स इट. कल अगर ये गैप अप करे, कल ये 970 965 पे गैप अप करे, तो फिर ये 1000 तक जाना चाहिए. इन दैट केस ट्रेल टू कॉस्ट कर देना एंड लेट अस सी वेयर इट कैन गो. पॉसिबली 1020 तक जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करना. और नीचे अगर जाना शुरू कर दे तो आज के बॉटम को स्टॉप लॉस लगा देना. दैट्स इट. उससे ज़्यादा होल्ड मत करना, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो एक बेहतरीन बाइंग लेवल है दैट शुड बी समवेयर 860 के आसपास, जो कि अगर कोई करेक्शन होता है बाजार में तो आपको मिलेगा 860 ये आसपास. बहुत अच्छी बाइंग लेवल है ये. सो ये एक बात होगी. चलिए, लेट अस टेक HUL. सी HUL इज अ लॉन्ग टर्म काउंटर. You don't need to really discuss. Next query है बाटा इंडिया. अगेन परसों इसे हम डिस्कस कर चुके हैं. दैट दिस इज ऑल्सो अ
buy and hold sort of a counter, and immediately you can expect 2020 levels to come. Tech Mahindra, again repeat query है, all repeat queries. Tech Mahindra भी हम परसों डिस्कस कर चुके हैं. टुडे इट हैज गिवन सम ब्रेकआउट. इसे होल्ड करो थोड़ा 1620 के लिए, ठीक है, यू कैन होल्ड. बिरला सॉफ्ट हैव एक्सप्लेन्ड. टाटा केमिकल हो चुका है. निफ्टी बैंक निफ्टी आई discuss in the initial part of the video. You can simply scroll back and watch the Nifty Bank Nifty view. LNT, Larsen and Toubro, this is a good query because 1730, these were good levels that LNT has reclaimed. I think LNT जो है एक अच्छा इस समय मैं समझता हूँ, we have got a good flush. ये एक अच्छा हुआ है जो 1700 का ब्रेक होना. This was the line 1735. So right now what you can do on LNT is, number one, if you have bought say today or somewhere here, then there is a problem because you will have to trail 1645 as a stop loss, which is 100 points lower. Second, if you are looking for a buying opportunity, then what you should do is you should wait for 1660 to come. You see these two candles, the double top of these two candles, there was a gap here, right? तो ये gap का जो हिस्सा है, the 1660 and that 1680, this is the buying zone with a stop loss where stop loss of 1600 for a target of what? Target of at least 19, 1930, 1950. These will be your targets. तो दो तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो आप. और इमीडिएटली मैं कहूँ तो ये 1825 पे एक रेजिस्टेंस है. So you can book at 1825, let it come here, buy again at these levels and play for one more swing. तो इस तरीके से you can structure and make a couple of trade in a same stock. Okay, so that's the update on the stock. Maruti is one query that is pending. So let us take Maruti Suzuki India. So Maruti, very brilliant up move. Last time इसे मैंने थोड़ा ऊपर में बाइंग सजेस्ट कर दिया था 7300 और स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, बट लॉन्ग टर्म पिक्चर मारुति की इंटैक्ट थी. नाउ यहाँ पे इसकी दो चीज़ें मारुति में एक्चुअली थोड़ा सा दो चीज़ें हुई हैं इस बीच. नंबर वन, एक जो खराब चीज़ हुई है ना वो ये हुई है, दैट वी गॉट टू मच ऑफ सेलिंग, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है. सो मारुति में मैं थोड़ा 2 महीने के हिसाब से, एक 2 मंथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है. अगर हमें अपमूव 8400 तक मिल गया तो मारुति को एक बार खाली कर देना है, ठीक है. वाई? बिकॉज आई बिलीव मारुति after touching this 8400, I think Maruti will drop again towards at least 7000 level or maybe somewhere near 7200 sort of a level. Okay, so this is why utilize this up move. Okay, utilize this up move to get some profit and clear off the inventory, free your capital, and next time we can get a deeper level to buy. सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है. मारुति में थोड़ा सा एक अपडेट है, 8400 इज नॉट गोइंग टू बी क्रॉस्ड सो इजीली. बहुत कठिन है, ठीक है. सो ये एक अपडेट है मारुति में. चलिए फटाफट एक दो क्वेरीज और लेते हैं. जैसे विप्रो लिमिटेड, इस समय ये स्टॉक स्लोली ऊपर जा रहा है. It has consumed a lot of time, but thankfully it is going up. And we have finally reclaimed all the moving averages, so they will act as a cushion in case of any fall. So first thing, you have a very good support at 578. So this becomes your net, this becomes your support area, ठीक है. 578. अब ऊपर की बात करें तो we had good support till 630 and possibly 640. तो ये जो जोन है ये हमारा टारगेट हो जाएगा. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है. अब अगर कोई गिरावट आता है इसमें 578, देन इट्स अ फ्रेश बाय ट्रेड. 578 पे बाय एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 540, टारगेट 640. तो इसमें मैं एक फ्रेश ट्रेड भी दे रहा हूँ और
पहले जिनके लॉन्ग्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड विप्रो फ्रॉम बोथ दी पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे एक बार। तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छा मूव हुआ है, 700 के लेवल को जो रिक्लेम किया गया, बहुत ज़रूरी था इसको रिक्लेम करना फॉर एनी बुलिश मूव टू कम। सो दैट इज गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। नाउ इमीडिएटली ये स्टॉक 740 पे मेजर इसका एक बैरियर है। सो आई थिंक 740 तक तो जाएगा, उसके बाद अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बिकॉज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी एक और स्लाइड नीचे करता है तो ये 740 से ये स्टॉक क्या करेगा कि 740 से ये स्टॉक वापस से एक बार 680 के आसपास आएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग एंट्री होगी। एंड अगर ये मुझे मिला ऐसा 740 से 680 और 670, definitely I would like to purchase ICICI Bank for next move till 800 sort of a level, 800 और मे बी 780, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। आई थिंक अभी 740 चल जाना चाहिए, अगर बाजार में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो आई थिंक 740 तो चल जाएगा, बट आई थिंक 740 से एक ट्रिप आना चाहिए नीचे। बट दिस इज द पॉइंट वेयर बेस्ट ट्रेड कैन बी टेकन। सो ये एक अपडेट है आपका आईसीआईसीआई बैंक पे। आखिरी क्वेरी लेते हैं आज के लिए। HUL बता चुका हूँ, बार बार मत पूछिए, HUL इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। तो अगर आपने बाई किया तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म अगर प्ले कर रहे हो तो कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के उसे आप हैंडल कर लो। एक आखिरी क्वेरी में लेता हूँ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगेन अगेन रबड़ प्ले है, यानी टायर्स वाला जो फंडा है। सो बेरिश काउंटर है, इट हैज ब्रोकन बिग हेड एंड शोल्डर। So any up move that comes, just try to exit. This stock is very bearish. Okay, so possibly max to max, I don't see this stock crossing 200, 2200 level. Very very bearish counter. ठीक है, so that's it. चलिए, that's all for tonight. We have taken 1 hour live stream and most of these stocks I have discussed. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों जुड़ जाइए, और जिनकी क्वेरीज आज मैं नहीं ले पाया हूँ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप कर दीजिए, कल हम आपकी क्वेरी से शुरू करेंगे। एंड लास्टली, all those who are interested in learning from us, you can WhatsApp, you can join, you can register and get added in the Telegram group. Thank you so much. Wish you all the best for tomorrow's session. Good night. Jai Mata Di.